Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are preparing for 2023 banking, insurance, and other exams. And daily I am giving you task for next 24 hours, and many of you are doing that task. And by this process, a regularity is being developed, a systematic approach to competition is being developed, and a habit of reading something daily is being developed. And this habit itself helps you to acquire knowledge, and this acquisition of knowledge will place you ahead of your competitors. And if you can place yourself ahead of your competitors, you can be winner. So today our focus is English language. How to improve our marks in English language. Now, this is a subject where most people are weak because this is not our language. We are always strong in our mother tongue. But in India, as we speak lot many languages across the country, there is a diversity. So we need a language which bridges this gap. So English is being used as a medium of communication between various linguistic people. And that's why in every competition where job is all India or the institution is all India nature, the knowledge of English is tested. Because that only ensure that you will be able to communicate with people across the country. So if I am weak in English, I must improve my English. The reason of weakness in English may stem from our education system. There are a number of states where English is not taught up to class 5th. There are a number of states where candidate is not read English language even up to class 8th. So a basic weakness persists. When he goes to the world of competition, he has to compete a candidate who has learned the English right from nursery. There is another candidate who started learning English after class 6th or after class 9th. So that makes a huge difference between these two set of candidates. But this can be easily bridged. The gap can be bridged if we focus on the language. So what is the way of focusing on this language? The simple way is I should develop habit of reading English newspaper on daily basis. Various apps are available where newspaper is available. There is no need of buying the newspaper. So you can download any app and start reading it. The best way is develop habit of reading Financial Daily like Economic Times, Business Line, Financial Express, or Business Standard, because by reading this newspaper not only you are improving English but you are acquiring knowledge regarding banking, finance and economics. So if your focus is banking exam, by reading one Financial Daily you are getting the knowledge for two subjects. So that is advisable. Read English magazines, talk with your friends in English, watch English programs, and you must read English grammar book on daily basis because English is for English the grammar is mother of the language. So if you are good in grammar, you are good in English. Then you must attempt lot of exercises on English, and after attempting the exercise, see the solution, try to learn where you have committed the mistake and how you can rectify it. So on our Telegram channel, I have placed many exercises of English language today. Visit the Telegram channel. Telegram channel link is available in description, and try to attempt as many as exercises you can. Then I have suggested you to take two basic tools that will help you in
repeating. One is good quality mock test. Link of this mock test is available in description. Click the link. You will register, take annual plan along with banking sectional mock test. Apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy this mock test through Smart Kida app. Download the app, take the plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. Daily attempting few mock tests will help you. So today you can attempt 1 or 2 banking sectional mock test of English. You may score high or low. Don't bother about marks. Try to learn from the mock test. Then read the solution part of it. The solution will tell you how to attempt these questions. This is also learning. So mock test itself is a learning tool. On one side, it is a diagnostic tool. On the other side, it is a learning tool. Don't postpone the usage of mock test. Some people say, sir, I will complete the syllabus and then I will do the mock test. That is a wrong approach. Mock test should come into your study plan from day one. Whether you score or not, that is not important. The purpose of doing mock test is not scoring. Purpose of mock test is to learn. Second important source is current affair, because current affair must be read on daily basis. A very good source I am suggesting. Click the link. You will land up on an app. Download the app. Take 2022 plan. Apply coupon code AA03. You will have 10% off. Now you are having access to daily, weekly, monthly PDF for next 1 year. That means up to November 23. Read from daily PDFs. And the third important source is your knowledge in banking. So I have given you a banking, finance and economics playlist. Very good videos, short duration videos, simple language videos. Develop habit of watching 10-15 videos per day, because you are preparing for 2023. You have adequate time. Acquire the knowledge now. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. 2023 के एग्जाम को फोकस करके हम तैयारी कर रहे हैं. एक प्रश्न मन में आता है कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे. हर साल एग्जाम होते हैं और 2023 में भी होंगे. अगर हम सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट अपने में ले आते हैं तो हम अपने कंपटीटर से आगे निकल जाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लगातार निरंतर अपनी तैयारी करते रहना चाहिए. तो इस चैनल पे हमने एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट को फोकस करके हम एक दिन तैयारी कर रहे हैं. आज का हमारा फोकस है इंग्लिश. जो ये भाषा है इसमें अधिकांश लोग वीक है. उसका कारण क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम. इस एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी जगह ऐसा है 5वीं क्लास तक इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती. काफ़ी ऐसे भी राज्य हैं जहां 8वीं तक भी नहीं पढ़ाई जाती. तो होता क्या है, कैंडिडेट को पहली बार इंग्लिश पढ़ने को मिलती है 6ठी क्लास में या 9वीं क्लास में. उधर दूसरे कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नर्सरी से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं. तो जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हैं तो एक अनइवन कंपटीशन हो जाता है उन कैंडिडेट्स के बीच जिन्होंने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है और एक वो बच्चे जिन्होंने देर में इंग्लिश पढ़नी शुरू की है. अब क्योंकि इंग्लिश हमारा भाषा नहीं है, हमारी जो मदर लैंग्वेज है या मदर टंग है वो कुछ और है. दिन रात हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं. तो इसलिए ये भी स्वाभाविक है कि अधिकांश लोग इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं. पर इंग्लिश अनिवार्य भाषा है भारत के लिए. क्यों? क्योंकि जो हमारा देश है इसमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं. और जब हमें एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यक्ति के बीच में बातचीत करनी है तो हमें एक कॉमन भाषा की आवश्यकता है. और वो भाषा जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश के रूप में हमारे देश में स्वीकार की गई है. क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा आप दूसरे देशों में भी जाकर अपनी बात रख पाते हैं और वहाँ की बात समझ पाते हैं. तो जब आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन किसी के लिए भी जॉब में ट्राई कर रहे हैं
तो वहाँ पर इस भाषा का ज्ञान जरूर चेक किया जाता है, क्योंकि जब किसी भी आप ऐसी संस्था में काम करेंगे जो ऑल इंडिया करेक्टर की है, तो आपको कहीं भी नौकरी करने का मौका मिल सकता है। और अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे काम करेंगे। इसलिए इंग्लिश भाषा की अच्छी नॉलेज होना एक ज़रूरी चीज़ है हमें कंपटीशन पास करने के लिए। कई लोग डरते हैं इससे, ऐसे एग्ज़ाम्स की तलाश में रहते हैं जहां इंग्लिश ना हो, तो उससे उनकी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड रह जाती हैं और फिर उसमें वो नहीं निकल पाते हैं। तो भाषा से डरे नहीं, भाषा को सीखने की कोशिश करें। तो जो मैं इसमें सिंपल स्टेप्स आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे, आपकी भाषा ज़रूर अच्छी होगी। पहला है इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना। अब ऐप बहुत सारी अवेलेबल हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर होता है, फ्री मिल जाता है, उसको आप पढ़िए। अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस के कैंडिडेट हैं तो अच्छा ये रहेगा कि अखबार का चुनाव वो करें जो फाइनेंशियल डेली है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिजनेस लाइन है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। इससे आपको डबल फ़ायदा होता है। एक तरफ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग की नॉलेज भी इम्प्रूव होती है। तो दो पेपर में आपको मदद मिल जाती है ऐसे अखबार पढ़ने से। दूसरी, इंग्लिश की मैगज़ीन पढ़िए, इंग्लिश के प्रोग्राम देखिए, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करिए और एक अच्छी ग्रामर बुक को रोज़ पढ़िए। कोई भी अच्छी ग्रामर बुक ले लीजिए और रोज़ पढ़ने की आदत डालिए। उससे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि जो किसी भी भाषा की मदर क्या है, ग्रामर, तो अगर आप ग्रामर अच्छी होगी आपकी तो आप कामयाब होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, पर हर क्वेश्चन इंग्लिश का ग्रामर पर ही आधारित होगा। तो ग्रामर हमारी अच्छी होनी अति आवश्यक है। इसके अलावा आपको इंग्लिश की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आज मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेज इंग्लिश की डाल दी हैं। इनमें से जितनी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। जब आप करेंगे कुछ क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, उसका सलूशन देखिए और सीखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने आपको 2 टूल्स लेने को कहा है, उसको ज़रूर ले लें। पहला है गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और प्लान चूज़ कर लेंगे, कूपन कोड AA03 लगाएंगे, 10% ऑफ आ जाएगा। यहाँ से आज आप 2-3 बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश के अटैम्प्ट कर लीजिए। अब कई लोगों को गलत फहमी होती है कि मॉक टेस्ट बाद में लगाने चाहिए, पहले कोर्स पूरा करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मॉक टेस्ट भी आपकी स्टडी का हिस्सा है, इसको डेली करना चाहिए। हो सकता है जब आप शुरू में मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके नंबर बहुत कम आए, नंबरों को भूल जाइए। नंबरों के लिए आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़े। तो जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद उसका सलूशन देखिए और उस सलूशन से सीखिए कि जो इस तरह के क्वेश्चन हैं किस तरह अटैम्प्ट किए जाते हैं। तो मॉक टेस्ट को जहां एक तरफ आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह इस्तेमाल करना है जो आपको बताएगा आपकी कमियां क्या हैं, दूसरा आपको एज ए लर्निंग टूल भी इस्तेमाल करना है जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगा। इसको डे 1 से करिए, डेफर मत करिए। और आपको अच्छा सोर्स बता दिया, इसको ले लीजिए चाहे आपके पास पहले से कोई भी मॉक टेस्ट है। दूसरा, करंट अफेयर पढ़ने की रोज़ आदत होनी चाहिए। काफ़ी लोग बहुत लेट करंट अफेयर शुरू करते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर मैं रोज़ 1 घंटा 2 घंटा अपनी सुविधा अनुसार करंट अफेयर को दूंगा तो मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर का अच्छा सोर्स मैंने आपको बता दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करके आप 2022 का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ गया। अब आपके पास 1 साल तक डेली, वीकली, मंथली PDF आते रहेंगे। यहाँ से आप डेली PDF पढ़िए, एक्वायर कीजिए नॉलेज
और कई बार हम फ्री करंट अफेयर के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो लिमिटेड होता है। यहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में मटेरियल मिलेगा और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में आपको औरों से आगे निकलना है। तो आपके पास ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए, एग्जॉस्टिव मटेरियल होना चाहिए और उसको आपको पढ़ना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे समझदारी की है वो है आपकी नॉलेज बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस हैं, सिंपल लैंग्वेज के वीडियोस हैं। 10 से 15 वीडियो रोज़ देखिए। आपके पास अभी टाइम है, आप एक अच्छी नॉलेज बैंकिंग की एक्वायर कर सकते हैं। ये आपको जो एडिशनल मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बैंकिंग फील्ड के होते हैं। अब अगर आपको नॉलेज है तो आप वो कर लेते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। जिनको वो नॉलेज नहीं है उनको लगता है ये कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सोर्स ऐसे होते हैं जो बैंकिंग की नॉलेज दिलाते ही नहीं है आपको, और उससे आप पिछड़ जाते हैं। तो बैंकिंग, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की अच्छी पकड़ होना, अच्छी नॉलेज होना निहायत ज़रूरी है। 10 से 15 वीडियो रोज़ देखिए, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कंपटीशन का मतलब है औरों से आगे रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल।